Well, it's very disappointed loss in the Border Gavaskar Trophy at Melbourne Test 2024, India versus Australia. It's a fourth test, and Australia are winning by 184 runs. Yeah, or we can say Australia won by 184 runs and dominated in this series very well, hammered to India. Yes, in morning time, Australia resumes loss of 9 wickets, but we can say there are not lot of time India's bowler take and Bumrah taken a fifer once again in this series third time, and you can say India took the target 340, Australia took the lead 339. So just 6 runs added more Australia in the yesterday innings, but it was again disappointed when Rohit, Rahul, and Kohli has gone. And in this series, it was the problem from the first test, and these thrice stereo we can say are not clicking in this series, and it's very poorest batting in this series, and that's why we are 1-2 behind in this series, and also out of race of the World Test Championship final. South Africa already qualified, but here Australia maybe win the last test match and go into the World Test Championship. Here the analysis of the this biggest test series. First test we have won and came into the Adelaide with 1-0 lead. But what happened in Adelaide, then Brisbane, we anyhow draw, and here it was very disappointed yesterday. We have lot of given runs unnecessarily. I think 70 plus runs we have given last wicket partnerships, and 50 to 60 plus. But here Jaiswal batted really well. Controversial decision from third umpire in sneakometer. There is no line, but it's a glove. You can say the ball was hitting to the gloves in replay, and that's why he has given to the out. But you can say only one batsman cannot be save the test match from you if you are not starting very well from the top order. That's why you are struggling and again losing in this series. And the same happened. Rohit Sharma, where is the captain, where is his knocks? That's the really big problem. In opening it's also a problem, in middle also a problem. So we need a Pujara kind of batsman, we need a Rahane type of batsman. But in this test match we are just rely on Nitish Reddy, we are just rely on Washington Sundar. This is not a test match or this is not a ODI and T20. This is the test match. We need a classical batsman, we need a well defensive batsman with greatest technique, and unfortunately we have had not in that series. So it's totally blame to the Gautam Gambhir, totally blame to the Abhishek Nair, team management, selectors, as well as captain. So in the next New Year's test in 2025, I don't know, and I don't know how the team will perform. But here the news is it's frustrated. This is not a New Year's gift, it's not a ideal finish of the 2024. It's frustrated finish 2024 in test cricket. Very poor performance in this series, and we are so disappointed, not only fan players as well. So I don't know what is the future of Indian test cricket as well as ODI. Just only we are happy with the T20 format, especially IPL as well as T20I. So totally blame to the BCCI, because they are not producing so many day night tests, so many tests with good pitches, and that's why we are losing here. तो 2024 का जो साल है वो ठीक तरीके से अंत नहीं हुआ भारत के लिए, और जैसा कल कहा जा रहा था कि थोड़ी सी आशा ज़रूर है कि जैसा गाबा में 3 साल पहले हुआ था, लेकिन मिरेकल्स जो है वो हमेशा नहीं होते।
वह मिर्कल ही था जब भारत ने 2021 में जीता था 3 विकेट से गावा में, और फिर मेलबर्न में भी भारत जीता था, लेकिन यहाँ पे हैट्रिक नहीं लगी जीत की। 18 और 2020 में भारत जरूर जीता था, बट हेयर भारत की लचर बैटिंग न्यूजीलैंड सीरीज से थी और वह यहाँ भी वह जारी रही। भारत के जो दिग्गज बल्लेबाज थे, नाम मैं यहाँ पे ज़रूरत नहीं है लेने की, दिग्गज जो टीम थी, टॉप ऑर्डर जिसे कहते हैं 5-3 5-4 जो भी आप कह लीजिए, इस सीरीज़ में रन्स नहीं है किसी के भी। और ऋषभ पंत हो, चाहे रोहित शर्मा हो, कोहली हो, या फिर जो भी प्लेयर्स हों, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। ये वीक सीरीज़ थी और सेलेक्टर्स को इस टूर पे अनुभवी बल्लेबाजों को भेजना चाहिए था, जैसे रहाणे, पुजारा, क्योंकि इन्होंने रन्स किए हैं ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन जब न्यूजीलैंड के खिलाफ इस तरीके का हाल हुआ तो डेफिनेटली टीम में तो इनको लेना ही चाहिए था। नए प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अनुभव नहीं है कि इस कंडीशंस में खेलना कैसे है, और वही इस सीरीज़ में भारत के लिए दिखा। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बहुत मुश्किल हो गया यहाँ से, और शायद ही भारत खेले। साउथ अफ्रीका ऑलरेडी क्वालिफाइड है और मे भी ऑस्ट्रेलिया ही जाएगा। तो भारत के लिए यहाँ से भारत का टेस्ट फ्यूचर काफ़ी यू कैन से वेरी डिफ़िकल्ट, एंड द नेक्स्ट सीरीज़ विल बी इंग्लैंड सीरीज़ इन इंग्लैंड, और वो भी काफ़ी टफ होने वाली। ड्यूस का बॉल है और काफ़ी हिलता है सारे दिन। इसके बाद फिर भारत को अक्टूबर में खेलना है आई थिंक वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका से। तो अभी काफ़ी टाइम है होम सीरीज़ में, लेकिन यहाँ से भारत को एक टीम बनानी होगी और वही प्लेयर्स भारत को लगातार खिलाने होंगे। ये नहीं कि इस सीरीज़ में ये नए प्लेयर्स, इस सीरीज़ में ये नए प्लेयर्स। तो इस तरीके की परफॉर्मेंस जब होगी तो अब देखना होगा चेंजेस क्या होते हैं। रोहित शर्मा को तो हटाना ही चाहिए क्योंकि उनकी ना कैप्टनसी सही रही है इस सीरीज़ में, ना ही उनसे रन्स हुए हैं। मुझे लगता है अभी भी रहाणे को टीम में ले सकते हैं, उन्हें कैप्टन भी बना सकते हैं, क्योंकि लास्ट टूर पे उन्होंने ही सीरीज़ जिताई थी। मुझे बहुत ही सरप्राइज़ होता है कि उनके जैसा बैट्समैन जिसके पास अपार अनुभव है, जिसके पास अच्छी क्लासिकल बैटिंग स्टाइल है, वो टीम से बाहर है। अश्विन के साथ भी ऐसा हुआ, उन्होंने संन्यास लिया। देखते हैं इस सीरीज़ का जो आखिरी टेस्ट बचा है, सिडनी टेस्ट, न्यू ईयर्स टेस्ट, उसके बाद क्या बहुत सारे डिसीजन होते हैं, क्या बहुत सारे बदलाव होते हैं। बट यहाँ से न्यूज़ यही है कि भारत के लिए यह सीरीज़ एक बुरा सपना की तरह रही है। भारत ने पहला टेस्ट जरूर जीता और काफ़ी प्रभावशाली तरीके से जीता, बट यहाँ उसके बाद जैसे ही रोहित शर्मा आए, एडिलेड भारत बुरी तरीके से हारा, ब्रिस्बेन किसी तरह ड्रॉ हुआ, और इसके बाद मेलबर्न में भी भारत की लुटिया डुबाई गई। जैसे उनके बल्लेबाजों ने रन्स नहीं किए। गेंदबाजी तो भारत के लिए अच्छी रही, जसप्रीत बुमराह ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, 29 विकेट है उनकी इस टेस्ट सीरीज़ में। लेकिन कहना होगा कि उनका कोई साथ देने वाला गेंदबाज नहीं था, अन्यथा जो है 70+ रन्स भारत नहीं लुटाता इस सीरीज़ में जो कल एस्टरडे हुआ। लेकिन फिर भी अगर भारत को टारगेट 270-280 का मिलता, आसान नहीं होता। चौथे या पाँचवें दिन की पिच पर आपको रन्स बनाना आसान नहीं होता, तो वहाँ पर अनुभवी और क्लासिकल बल्लेबाज चाहिए जो आपके लिए टेस्ट को ड्रॉ कर सके। द्रविड़ जैसा बल्लेबाज, यू कैन से पुजारा जैसा बल्लेबाज, रहाणे जैसा बल्लेबाज। लेकिन इस टीम में आप देखो तो सिर्फ T20 स्टाइल वाले बल्लेबाज हैं, मारने वाले बल्लेबाज हैं, अच्छा डिफेंस या कैलकुलेटिंग रिस्क के साथ खेलने वाले बल्लेबाज नहीं हैं। तो देखना होगा कि क्या बड़ा डिसीजन होता है। मुझे तो लगता था न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद ही बड़े डिसीजंस लेने चाहिए थे, लेकिन चूँकि आगे ऑस्ट्रेलिया टूर था तो फिर बहुत सारे डिसीजंस रह गए। लेकिन अब जो ये हाल हुआ है, 2-1 से ऑस्ट्रेलिया आगे है और लास्ट टेस्ट मैच है, तो देखना होगा अब क्या होता है। सो द नेक्स्ट ईयर न्यू होप, बट इंडिया हैडंट फिनिश the series well and the year well as well, 24. So thank you, and it's very frustrating loss. Have a great day.